کرنی چاہیے کرنا ہے. پہلا تسلونیکیوں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. لیکن قوم بنی اسرائیل کو خدا نے جس پرپس کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ تم اپنی زمین کی پیداوار میں سے پہلے پھلوں میں سے خدا کے حضور اپنے ان گفٹس کو جو خدا نے آپ کو دیے ہیں وہ خدا کی نظر کرنا, خدا کی حضوری میں پیش کرنا. کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ انسان مجھے جانے کہ میں ان کا خدا ہوں. آج بہت سے لوگ ایتھیسٹ ہیں, خدا کو مانتے نہیں, اس کی قدرت کو جانتے نہیں, قبول نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا خالق اور والد ایک واحد وہی خدا ہے جسے ہم خدا قادر مطلق باپ کہتے ہیں. اور آج کلیسیا بھی اس بات کو سمجھ لے کہ ہمارے لیے خدا نے یہ ساری کائنات خلق کی ہے. کیا افلاکیات جہاں پر آسمان زمین نیر سورج چاند ستارے بنے ہیں, یہ انسان کے ہاتھ کی کاریگری نہیں بلکہ خدا کی ہے. کیونکہ خدا نے اس سارے پلانٹ کو تیار کیا ہے اور اس نے منہ کے کلام سے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا. جس طرح سے ہم بائبل کو شروع سے جانتے ہیں, جو بائبل کو پڑھنے والے ہیں ان کو ان ساری باتوں کی سمجھ ہے. وہ جانتے ہیں کہ خدا نے ان 6 دنوں میں, پہلے 6 دنوں میں زمین کو ہی خدا نے سجایا اور بنایا, اور اس میں پیڑ پھل پودے اور ہر طرح کی انسان کی ضرورت کے مطابق حیاتیات کو قائم کیا. پہلے اخلاقیات, پھر حیاتیات اور پھر معدنیات. زمین کے نیچے کی چیزیں, سونا چاندی ہیرے موتی آئل, ہر طرح کی معدنیات جو سی ہے وہ زمین کے نیچے کی خدا نے خلق کی. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اور آخر میں خدا نے انسان کو بنایا اور جسے خدا نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پور کائنات دکھا کر خدا خوش ہوا اور خدا نے کہا کہ سب اچھا ہے. اس کے لیے انسان, تاکہ انسان ان چیزوں سے لطف اندوز. لائٹ چلے گی پرابلم, پانی چلے جائے پرابلم, آج کل تو انٹرنیٹ بھی چلے جائے تو وہ سب سے بڑی پرابلم. جن چیزوں کے لیے خدا نے ہمارے لیے یہ ساری سہولتیں اس دنیا میں رکھی ہیں, کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم ان ساری نعمتوں اور برکتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں؟ ہاللیلویہ. اور ان چیزوں کے لیے تو خدا نے ہمیں یہ سب کچھ دیا, لیکن انسان کے لیے ایک چیز دی اور وہ ہے اخلاقیات. اخلاقیات, حیاتیات, معدنیات اور انسان کی زندگی میں اخلاقیات. انسان اپنی خودی پہ نہ مت چلے. خدا چاہتا ہے کہ انسان کیا کرے؟ محبت کرے. وہ محبت سے زندگی بسر کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور سلامتی رکھے. یہ شکر گزاری, تھینکس گیونگ فور ٹائم, فور ایگزامپل, صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اس کا تعلق روحانی طور پر دل سے تعلق ہے, جو کہ قوم بنی اسرائیل پورا نہیں کر سکتی. خدا نے ان سے وہ بادشاہ چھیننے کا قرار. آئے ایک بات کو سیکھتے ہیں مرکز 12 باب اور اس کی ہم چند آیات کو دیکھیں گے. نئے عہد نامہ میں 2 انجیل
मरकस 12 बाब, यहाँ पर एक तमसील यीशु मसीह सिखा रहे हैं। एक पाकिस्तान लगाया गया और उस पाकिस्तान को उसके मालिक ने कुछ लोगों को रेंट पे दे दिया, ठेके पे दे दिया, ताकि उस पाकिस्तान में वो काम करे और जिस वक्त फल आए तो वो उस मालिक के पास उसका फल वापस लेकर आए। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हम देखेंगे खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से इस बात को, क्योंकि ये बात हमें नए आदनामे में इसलिए मिलती है कि खुदा चाहता है कि हम इन बातों को सीखें। और खुदा का कलाम यहाँ पर फरमाता है, फिर वो उनसे तमसीलों में बातें करने लगा। एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया और उसके चारों तरफ अहाता घेरा, होश खोदा और बुर्ज बनाया और उसके बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने एक नौकर को बागबानों के पास भेजा ताकि बागबानों से पाकिस्तान के फल का हिस्सा ले, लेकिन उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने फिर एक और नौकर को उनके पास भेजा, मगर उन्होंने भी उसका सर फोड़ दिया और उसे बेइज्जत किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे कत्ल किया। फिर उस और बथेरों को भेजा, उन्होंने उनमें से बाज को पीटा और बाज को कत्ल किया। और एक बाकी था जो उसका प्यारा बेटा था और उन्होंने उसको भी कत्ल किया। उसने आखिर उसे उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज रखेंगे, लेकिन बागबानों ने आपस में कहा, यही वारिस, आओ उसे कत्ल कर डाले, मिरास हमारी हो जाएगी। बस उन्होंने उसे पकड़कर कत्ल किया और पाकिस्तान के बाहर फेंक दिया। अब पाकिस्तान का मालिक क्या करेगा? वो आएगा और बागबानों को हलाक करेगा ताकि औरों को दे दे। ये यीशु मसीह ने तमसील एक बागबान की सुनाई कि उसके नबी आए, उसके पैगंबर आए, उन्होंने उन लोगों को फल लाने के लिए खुदा की हजूरी में उस सारी बात के मुतालिक सिखाया और बताया। तब इस्राएल कौम सिर्फ जमीन की पैदावार खुदा की हजूरी में पेश करती थी। जमीन की पैदावार में से अपना हिस्सा वो बड़े बड़े जानवरों पर लाद कर लेके आते थे। वो बड़ी बड़ी ज़ियाफ़तें खुदा की हजूरी में पेश करते थे। आज भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। ये थैंक्सगिविंग पर हम ज़ियाफ़तें और बड़े बड़े अपनी जिंदगी के कारनामे खुदा की हजूरी में पेश करते हैं, लेकिन खुदा की निगाह हमारे दिलों पर है। उस वक्त में खुदा चाहता था कि कौम बनी इस्राएल दिल से मुझे अपना मालिक, अपना आका, अपना खालिक, अपना खुदा कबूल कर। और रूहानी तौर पर उन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने इस तमसील को आगे आगे खुद बयान किया। और आगे हम देखते हैं कि जब कौम बनी इस्राएल ने उस बादशाही के मुताबिक जो खुदा उन्हें देना चाहता था फल नहीं खुदा की हजूरी में पेश किया, तो खुदा ने उस बादशाही को वापस लेने का इरादा कर लिया। यहाँ पर हम मत्ती की
खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उनको दी जाएगी जो उसके लिए फल लाते हैं। खुदा अपने लोगों को सिखाना और बताना चाहते हैं यहाँ पर कि बादशाही जो खुदा की है वो बेफल लोगों के लिए नहीं, वो फलदार लोगों के लिए है, जिनकी जिंदगी में रूहानी तौर पर खुदा के कलाम के मुताबिक वो पाकीज़गी, वो आजिज़ी, वो एक दूसरे से मोहब्बत और खुदा की इबादत उनके दिलों में जिंदा रहे। और खुदा चाहता है कि मेरे लोग उस बादशाही को जो उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें दी जाने वाली है, उसके लिए हम तैयार हो और तैयार रहे। क्योंकि खुदा का कलाम दो चीजों को बयान करता है, एक इंसान की खुद की मर्जी और एक खुदा की मर्जी। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि अपने बाप की मर्जी को, तो मैं और आप इस दुनिया में क्या हम अपनी ही मर्जियों को पूरा करने के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं? अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, खानदान की, अजीजों कारन की जरूरियात के लिए ही सिर्फ हम जिंदा हैं? हमारी जिंदगी में कोई और पर्पस और कोई मकसद नहीं कि हमें अपनी जिंदगी का खुद फैसला करना है, हिसाब देना है, हमें कहीं पर जाकर कहीं पर किसी के सामने खड़े होना है और उन बातों के लिए हम वक्ती तौर पर अपने माइंड को परेशान करना नहीं चाहते। परेशानी देना नहीं चाहते। हम एजुकेशन क्यों हासिल करते हैं? ताकि कामयाब स्किल क्यों हासिल करते हैं? ताकि हम दुनिया में, माशरे में किसी काबिल हो। इन चीजों के लिए हम दिन करते हैं, लेकिन खुदा की बादशाही के लिए हम क्या सैक्रिफाइस करते हैं? क्या अपनी जिंदगियों की कुर्बानी हम खुदा की हजूरी में पेश कर रहे हैं? इस्राएल से यही बारहा गलतियां होती रही कि वो अपने आप को कुर्बानी के लिए जिस्मानी तौर पर तो पेश करते थे, लेकिन रूहानी तौर पर पेश नहीं करते। इसलिए खुदा उनसे जुड़ा। 1948 के बाद इस्राएल इकट्ठा होना शुरू हुआ। कब से? जब से यीशु मसीह मसलूब और वो सब क्या हो गए? परगंदा। आज हम इस्राएल के लिए बरकत चाहते हैं। आज हम दुआएं मांगते हैं, हाथ उठाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे लिए खुदा के कलाम में ये क्या है कि जो इस्राएल के लिए बरकत चाहेगा मैं उसको बरकत दूं। लेकिन खुदा ने एग्जाम्पल भी इस्राएल को ही हमारे सामने, मसीहों के सामने रखा है कि वो मेरी, और किसी कौम को खुदा ने मेरी नहीं कहा, सिर्फ इस्राएल को कहा है कि वो मेरी कौम। और आज जो उसकी कौम है वो अगरचे खुदा के हाथ के नीचे फरोजनी से, फरमाबरदारी से, वफादारी से, कवानीन के मुताबिक अगर है तो खुदा उनको हर जग में आज बहुत से इस्राएल में भी लोग मसीही होते जा रहे हैं। अब उनकी आंखें खुलती जा रही हैं
कि जिस यीशु को हमने मसलूब करवाया था उसी की हमने पैरवी करनी है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। बादशाही के लिए हम देखते हैं कि पहले ग्रंथियों 15 बाब और उसकी 20 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन फिर वाक्य मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उनमें पहला फल। मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल, और जो अब मसीह में सो गए हैं वो उसके बाद वो भी उसी तरह से, जिस तरह मसीह मुर्दों में से जी उठा उसी तरह से वो भी जी उठेंगे। और ये हर कौम के पास ये उम्मीद नहीं है। ये जिंदा उम्मीद सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों पर के लिए है। और वो लोग जो मसीह पर ईमान रखते हैं तो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा होंगे, क्योंकि वो मरे नहीं बल्कि सो। मौत का एक आलम है कि मौत जो खुदावंद यीशु मसीह ने जिस मौत पर फतह पाई, उस मौत पर अब मौत का भी इख्तियार नहीं। यीशु के आगे वो मौत हार चुकी, वो उठने की। अब मौत नहीं है। ऐ मौत तेरी फतह कहां रही? ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? मौत फतह का लुकमा हो गई, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस फतह से बढ़कर गलबा हमारी जिंदगियों के लिए हमें अता किया। वो एक साये की माने है। साया कुछ देर के लिए, और उस साये के बाद जब वो साया गुजर जाता है तो फिर रोशनी आ जाती है और वो अंधेरा खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो मसीह में सोते हैं वो मरते नहीं बल्कि एक साये में से गुजरे, और वो साया जब यीशु मसीह के आने पर वो नूर, वो जलाली नूर आज जब जमीन पर हमारे लिए आएगा तो वो सब मुर्दे जो मसीह में सो चुके हैं वो क्या होंगे? जिंदा। पहले वो जो मसीह में मुए हैं, और फिर उसके बाद दूसरे लोग खुदावंद की बादशाही में दाखिल। और मैं यहां पर एक बात को और बताना चाहता हूं कि शुक्रगुजारी आपकी जिंदगी में खुदा हमेशा देखना चाहता है। खुदा फॉर टाइम के लिए नहीं
पसंद नहीं, जिसमें सारी जिंदगी हमारी रखी। ज़बूर 58 में 17 आयत, और ये मेरे बड़े दिल के करीब आयत रखी कि खुदावंद चाहता है कि शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी, और लिखा है कि ऐ खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर न जानेगा, वो रिफ्यूज नहीं कर देगा उसकी किसी बात। दाऊद का दिल खुदा ने जब देखा तो उसके अंदर ये आवाज खुदा को सुनाई दी, और दाऊद कहता है खुदा मुझे शिकस्ता और खस्ता दिल अता कर। उसकी डिमांड देखें, वो खुदा के साथ वफादारी से चलना चाहता है। उसको पता है कि मेरे दिल में कोई भी बुरा ख्याल, बुरी बात, बुरी सोच, हसद, नफरत मुझे खुदा के लायक बनाएगी। इसलिए वो कहता है कि ऐ खुदा मुझे पाक दिल, शिकस्ता दिल, खुदी से खाली दिल, आजसी, नरमी, खलूसे दिल, ऐ खुदा मैं हर एक से मोहब्बत से पेश आऊं, मेरे रवैये में ऐ खुदा मोहब्बत हो। ये जो चीज हमने बात आगे सीखी ना कि खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियों से अखलाकियात लोगों में ट्रांसफर हो, लोग अखलाकियात की आज भूख और प्यास रखें, और खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियों में ये कलाम पूरा होता जाए। यहां पर हम इसको आखिरी आयतों में क्लोज करेंगे। खुदा रूहानी फल चाहता है। आखिरुल कुदस की बनाई हमारी जिंदगियों पर जब ठहरी रहेगी तो फिर हमारी जिंदगियों में वो रूहानी फल नजर आएंगे। रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी और रूह के अंदर फ्रूट्स है, जिसकी जिंदगी में वो है, उसकी ताबेदारी है, उसकी फर्माबरदारी है, उस जिंदगी में ये फ्रूट्स भी है और फिर नजर भी आते हैं। दरख्त अपने फलों से पहचाना, और जो दरख्त फल नहीं लाता वो काटा और आग में। यीशु मसीह अंजीर के दरख्त के पास से गुजरे, बड़े बड़े पत्ते, बड़ी शान और शौकत उसकी नजर आ रही है, लेकिन बीच में कोई फल है क्या हो रहा? उस पर लानत हो गई, वो सूख गया। यीशु ने उस पर जिस चीज के लिए आज हमारी जिंदगियां फलदार नहीं है, हमें बनाने की जरूरत है। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, बूढ़ा है, अगर वो देखता है कि मेरी जिंदगी में ये कमजोरी है तो उसे वो कमजोरी को हटाने की जरूरत है। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करें। हम अपने अमाल, अपने दिल से, अपने रवैयों से, अपनी जिंदगी से पहला और बेहतरीन हिस्सा खुदावंद की हुजूरी में पेश करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को